My lovely students, welcome to Mathological. Welcome to another practice session on quantitative aptitude for XGMT examination. And you can download the PDF from Telegram channel Mathological and practice it yourself in the timed manner. And then watch the solutions right now, straight away. Okay, start karte hain. And if you have not already subscribed to the channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. And if you're liking the content, then as well like this video. Okay, so first question, ABC is a 3-digit number with distinct digits. If it is known that 3 into ABC is equal to another 3-digit number CCC, then what is the value of B? So 3 times ABC is equal to a number CCC. ठीक है, pause the video, solve it yourself first, फिर solution देखो. So 3 into ABC, that is CCC. So basically, this is the case. Okay, and we can say that, for example, if we have a number 111, so you must be knowing that 111 is equal to 37 into 3. दो ही फैक्टर्स होंगे 37 and 3. अब ट्रिपल सी सिमिलर टाइप का नंबर है. बेसिकली ट्रिपल सी इज c मल्टीप्लाइड बाई 111. सो वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू c इंटू 111 और 111 37 into 3, तो c इंटू 37 into 3. दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ABC. सो बेसिकली ABC इज इक्वल टू 37 टाइम्स c. और ABC is 100A, 100 times A plus 10 times B plus C, that is equal to 37 times C. And C को सब्ट्रैक्ट कर दोगे राइट हैंड साइड में लेके जाके, तो दिस विल बी 100 times A plus 10 times B, that is equal to 36 times C. और 10 will be common, तो 10 times of 10A plus B, that is 36C. So definitely this number, right, left hand side is a multiple of 10, तो राइट हैंड साइड भी 10 का मल्टीपल होगा. और अगर 10 का मल्टीपल होगा तो 36 में तो 2 का मल्टीपल आ रहा है बट 5 तो नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली C मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 5. इन सच अ सिनेरियो C मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 5, इजंट इट सो? और अगर C 5 का मल्टीपल है और C क्योंकि एक सिंगल डिजिट है तो C मस्ट बी इक्वल टू 5. या तो इक्वल टू 5 होगा या इक्वल टू 0 होता, बट 0 के केस में पूरा नंबर ही 0 हो जाएगा. सो C मस्ट बी इक्वल टू 5. 0 तो नहीं हो सकता उस केस में, मस्ट बी 5. और क्वेश्चन में वैल्यू किसका पूछा है? क्वेश्चन में वैल्यू पूछा है B का, तो C विल बी इक्वल टू 5. ओके, and if C is equal to 5, then number becomes 10 times 10A plus B, that is equal to 36 into 5, which is 180. 180 आ गया, यानी कि 10A plus B is 18. 18. The only possible solution is when A is equal to 1, because A is equal to 2 हो जाएगा तो B नेगेटिव हो जाएगा. So A must be equal to 1 और A 0 हो नहीं सकता क्योंकि A 0 होने पे 3 डिजिट नंबर ही बचेगा. So A will be equal to 1 and B will be equal to 8. So our original number ABC will be equal to 185 और multiplied by 3 will be 555, 555. ठीक है, ओके, ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है, बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 bottles of mixture of syrup and water of ratios 2:3, 3:4 and 7:5. 10 liters of first and 21 liters of second bottle are taken. How much quantity from third bottle is to be taken so that final mixture from 3 bottles will be of the ratio 1:1? So there are 3 bottles और mixture क्या है? syrup and water का. For the bottle number 1, the ratio is 2:3. For bottle number 2, the ratio is 3:4. For bottle number 3, the ratio is 7:5. और 2 + 3 5 यूनिट्स है. अगर 5 यूनिट्स हमारा मिक्सचर है फर्स्ट बॉटल का, तो आउट ऑफ दैट 2 यूनिट्स इज सिरप एंड 3 यूनिट्स इज वाटर. बट एक्चुअल कितना है? फर्स्ट से कितना लिया हमने? फर्स्ट बॉटल से वी हैव टेकन 10 लीटर्स. सो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 लीटर्स, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है, 12 लीटर्स है. सो इफेक्टिवली कितना सिरप होगा, कितना वाटर होगा? डबल है तो 4:6. 4 लीटर्स सिरप विल बी देयर एंड 6 लीटर वाटर विल बी देयर. सिमिलरली सेकेंड बॉटल से हमने लिया है 21 लीटर्स और 3 + 4 7 यूनिट्स है, तो 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 21 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 लीटर्स. सो 3 टाइम्स हो जाएगा 9 लीटर एंड 16 लीटर सिरप एंड वाटर विल बी देयर. 9 लीटर्स एंड 6 लीटर्स. नाउ थर्ड बॉटल से कितना लेना है वो हमारे ऊपर है. लेट अस अज्यूम कि 7 + 8 12 है, तो 12 यूनिट्स है. मान लिया हमने 12x लिया है, 12x लिया है, तो 7x विल बी सिरप एंड 5x विल बी वाटर. टोटल विल बी 4 + 9 13 + 7x which is syrup, and water will be 6 + 16 22 plus एक सेकेंड 9 and 12 होगा, 16 नहीं होगा.
तो 18 प्लस 5x हो गया, एंड रेशियो इज 1:1 यानी कि बोथ आर इक्वल, सो इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो, हेंस 2x विल बी इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5 आ गया, टोटल मिक्सचर हमारा है 12x, तो 12x इंटू कितना हो जाएगा, 2x इज 5, तो 12x कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12x बाई 2x इंटू 5 which is equal to 6 into 5, 30 liters. Total mixture from bottle 3 will be 30 liters. Okay. Answer will be 30 liters, option C. Clear? Okay. Next question. If A by B plus C is equal to B by C plus A is equal to C by A plus B is equal to R, then R cannot take any value except which of the following given values? So A by B plus C is equal to B by C plus A is equal to C by A plus B, and that is also given as equal to R. So let us say somewhere it is given that L by M is equal to N by P. So this will also be equal to L plus N upon M plus P. अगर दो रेशियोज इक्वल हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज इक्वल टू 3/6, तो 1 + 3/2/6 के 2 + 6 के भी इक्वल होगा, बिकॉज 4/8 हो जाएगा वो, ऑल रेशियोज आर इक्वल, क्योंकि रेशियो तो अल्टीमेटली मेंटेन ही चल रहा है. ठीक है, सेम चीज यहां पे अप्लाई होगा कि यू कैन से दैट इफ A by B plus C दिस इज इक्वल टू B by C plus A, दिस इज इक्वल टू C by A plus B, तो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A plus B plus C सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर वैल्यूज divided by sum of all denominator values, यानी कि B plus C plus C plus A plus A plus B, which will be equal to 2 times of A plus B plus C. Okay, A plus B plus C upon 2 times A plus B plus C. अब तुम एक काम कर सकते हो, A plus B plus C को कैंसिल आउट कर दोगे, बट कैंसिल आउट जब भी कभी ऐसे करो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट फर्स्ट कंडीशन इज दैट A plus B plus C is not equal to 0. बिकॉज इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 तभी कैंसिल आउट कर सकते हो, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मामला डिफरेंट है, फिर उस केस को सेपरेटली कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, सो इफ A plus B plus C इज नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस कैंसिल आउट हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 1/2, यानी कि R विल बी इक्वल टू 1/2 इन दैट केस. दैट इज फर्स्ट केस. बट सेकंड केस इज व्हेन A plus B plus C इज इक्वल टू 0, और अगर A plus B plus C इक्वल टू 0 है तो 0/0 तो अनडिफाइंड होगा. ठीक है, 0 upon 2 into 0 दैट विल बी अनडिफाइंड. तो 0 की तरह तो नहीं देखोगे उसको, देखोगे तुम A by B plus C को, कि if A plus B plus C is equal to 0, then A will be equal to minus B minus C, यानी कि minus of B plus C, and hence A by B plus C in that case will be equal to minus of B plus C upon B plus C, which will be equal to -1. So R will be equal to -1 in this case. So in the second scenario when A plus B plus C sum of all these values is equal to 0, तो हमारा R will be equal to -1. तो R can be equal to 1/2 और -1, both values are possible. इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल है, तो 1/2 और -1 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, एक्सेप्ट 1/2 एंड -1 एनी अदर वैल्यू आर कैन नॉट टेक फॉर श्योर. ओके, क्लियर है? ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) फॉर द लॉग एक्सप्रेशन क्या होगा? तो लॉग एक्सप्रेशन हमें गिवन है और कोई भी वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग लॉग ऑफ b ऑन द बेस a, तो जिस वैल्यू का हम लॉग लेने वाले हैं दैट b मस्ट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव होना चाहिए, ना जीरो होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए, दैट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव. एडिशनली a जो बेस है हमारा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, isn't it so? और बेस इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो बेस तो डेफिनेटली 735 सारी केसेस में पॉजिटिव है और 1 नहीं है, तो बेस के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें फोकस करना है किस पे? ऑन दिस पार्ट, जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन ऑन द बेस 7 ले रहे हैं हम, तो दिस होल एक्सप्रेशन मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि लॉग ऑफ this value on the base 3, this must be a positive number, which implies कि 3 to the power 0 से बड़ा एक्सप्रेशन होना चाहिए वैल्यू को, और 3 to the power 0 is equal to 1. So log of 20x minus x square minus 91 on the base 5, this must be greater than 3 to the power 0 or greater than 1. ठीक है, this must be greater than 3 to the power 0 and hence greater than 1. Okay, hence 5 to the power 1 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं. तो 20x minus x square minus 91, this must be greater than 5 to the power 1 यानी कि 5. So definitely 5 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो 20x minus x square minus 91 minus 5, this is greater than 0. तो minus 96 हो गया,
अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर के बजाय प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव हो जाए. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96, दिस इज लेस देन 0, क्योंकि इनइक्वालिटी भी चेंज होगा हमारा साथ में. जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 विल नॉट बी ग्रेटर देन -3 बट दिस विल बी लेस देन -3. तो ये हमेशा ध्यान रखना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96, अब फैक्टराइज करो इसको. 96 हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, 20 सम आ रहा है, तो 12 एंड 8 विल बी वैल्यूज, तो x माइनस 12 इंटू x माइनस 8, दिस शुड बी लेस देन 0. सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 8 एंड 12 एंड इफ प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव, तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. इफ x इज ग्रेटर देन 12 तब तो पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट, x लेस देन 8 होगा तब भी पॉजिटिव आएगा. बिटवीन 8 एंड 12 दिस प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. और क्योंकि इनइक्वालिटी है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो x शुड बी बिटवीन 8 एंड 12. The answer will be x should be between 8 and 12. Domain of the function पूछा है, x should be between 8 and 12. Option B will be the answer in this case. Clear है? Okay. ठीक है. Next question. Suresh, who runs a bakery, uses a conical shaped equipment to write decorative labels, for example, happy birthday, etc., using cream. The height of this equipment is 7 cm and diameter of the base is 5 mm. A full charge of the equipment will write 330 words on an average. How many words can be written using 3/5 of the liter of a cream? तो डायमेंशंस में हमें हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर्स एंड डायमीटर गिवन है 5 मिलीमीटर्स, और एडिशनली पूछा है 3/5 ऑफ द लीटर, यानी कि 3/5 ऑफ लीटर विल बी 600 ml. सो कितने लीटर्स लग जाएंगे? तो पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. कोनिकल शेप का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? एडिशनली 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ml. ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं. और ओके ठीक है. ऑल्सो अगर मिलीमीटर कभी मीटर क्यूब में हो तो 1 मीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 लीटर्स. सेंटीमीटर से भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, सो फाइनली वॉल्यूम क्या आएगा हमारा? वॉल्यूम वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो 1/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर. रेडियस कितना है? 5 mm है. So 5 mm is basically 5/10 centimeter, यानी 1/2 centimeter. This is 1/2 centimeter. So into 1/2 into 1/2 और into 7. 7 से 7 cancel out हो जाएगा. So this will become effectively 11/3 into 2, 11/6 centimeter cube. Okay, clear है? एक गलती हो गया हमसे. क्या गलती हुआ है पता लगाओ. गलती ये हुआ है हमसे कि डायमीटर है बेस का 5 मिलीमीटर, रेडियस नहीं है, तो पहले रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. भारी मिस्टेक हो गया नहीं? सो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसको. 1/2 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर है, सो दिस विल बी 1/4 इंटू 1/4, तो यहाँ बचेगा 11/24. भारी ब्लेंडर हुई का. 11/24 सेंटीमीटर क्यूब. दिस मच फुल चार्ज कैन राइट 330 वर्ड्स ऑन एन एवरेज. सो इसकी वजह से नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखेंगे? 330 वर्ड्स. और क्वेश्चन पूछा 600 ml की वजह से कितना लिखा है? बिकॉज दिस इज 11/24 सेंटीमीटर क्यूब विच इज ऑल्सो इक्वल टू 11/24 ml. तो 11/24 ml कैन राइट 330 वर्ड्स. टोटल है 600 ml, तो नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 600 ml डिवाइडेड बाई 11/24 इंटू 330. ठीक है, इंटू 330. दिस विल बी द नंबर. ओके, सो अब सिंप्लीफाई करते हैं. 11 से यहाँ बचेगा 30. 24 प्रोडक्ट में जाएगा, तो 600 इंटू 30 इंटू 24. 24 इंटू 3 72. 72 इंटू 6 इज 432. तो 432 फॉलोड बाई 3 zeros. तो दिस विल बी 4,32,000 वर्ड्स. 4,32,000 वर्ड्स. दिस विल बी द आंसर. और हेंस आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, बिकॉज एक जीरो मिसिंग है यहाँ पे. ओके, सो 4,32,000 विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A is climbing up a moving up escalator while ratio of speed of A and escalator is 2:3. तो escalator is also moving up और A भी climb up ही कर रहा है, तो both are moving in the same direction. Okay, both are moving in the same direction.
A is also moving upwards and escalator is also moving upwards only. और speed of ratios of A and E, let us say escalator 1 कर रहे थे because there are 2 escalators. So A and escalator का ratio है speed का 2:3. And since both are moving in the same direction, तो effective speed क्या हो जाएगा 2 + 3 5. ठीक है, इफेक्टिव स्पीड हो जाएगा 2 + 3 5. ये वैसे ही है जैसे कि एक बोट जा रहा हो स्ट्रीम में, स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रहा है बोट भी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दैट इज डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में स्पीड एड अप होगा. तो सिमिलर डाउन स्ट्रीम वाला केस है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. 5 मिनट्स हो गया टोटल स्पीड. और टोटल कितना एस्केलेट, बोथ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन ईच एस्केलेटर इज 120. तो ट्रैवल कितना करना है 120 स्टेप्स. तो 5 मिनट्स इज इक्वल टू 120 स्टेप्स इन टोटल ट्रैवल करने 120 स्टेप्स. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय बोथ ए एंड बी. तो ए ने कितने स्टेप्स लिए होंगे, 5 मिनट्स की इक्विवेलेंट है 120 स्टेप्स के बराबर, और ए ने लिए होंगे नंबर ऑफ स्टेप्स इक्विवेलेंट टू 2 यूनिट्स, बिकॉज टाइम तो सेम ही है. जितनी देर एस्केलेटर ट्रैवल कर रहा है उतनी ही देर ए भी ट्रैवल कर रहा है. Isn't it so? तो सेम, जब टाइम सेम है हमारा तो नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड. जो स्पीड का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ स्टेप्स का भी रेशियो होगा. तो 5 मिनट्स इज इक्वल टू 120 एंड हेंस 2 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 1 यूनिट विल बी 24, 2 यूनिट्स विल बी 48 स्टेप्स. तो 48 स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय ए. स्टेप्स टेकन बाय ए दैट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स. ये तो बात होगी ए की. सिमिलरली फॉर बी, बट बी के लिए केस में थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि बी इज क्लाइंबिंग अप अ मूविंग डाउन एस्केलेटर. तो बी अलग पंगा ले रहा है, ठीक है, बचकानी हरकत कर रहा है कि एस्केलेटर जा रहा है अपवर्ड्स, सॉरी एस्केलेटर जा रहा है डाउनवर्ड्स. एस्केलेटर जा रहा है डाउनवर्ड्स बट बी जा रहा है अपवर्ड्स. खतरे का खेल है, ठीक है. सो एस्केलेटर का स्पीड और बी का स्पीड का रेशियो क्या है, दैट इज 5:3. तो बी का स्पीड इज टू एस्केलेटर का स्पीड, दैट रेशियो इज 5:3. और डेफिनेटली क्योंकि बी का स्पीड एस्केलेटर की स्पीड से ज्यादा है तभी बी अल्टीमेटली ऊपर पहुंच पाएगा. अपस्ट्रीम वाला सिनारियो है, अपस्ट्रीम बोट, बी यानी बोट और एस्केलेटर जा रहा है स्ट्रीम हो गया यहां पे, ठीक है. तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 5 - 3, 2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है. रिलेटिव स्पीड हो जाएगा हमारे यहां पे बी का स्पीड माइनस E2 का स्पीड. तो 2 इज इफेक्टिवली 120 स्टेप्स, क्योंकि जितना स्पीड है उतना ही नंबर ऑफ स्टेप्स का भी रेशियो होगा, ठीक है. तो 2 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 120 स्टेप्स. बट बी ने कितना ट्रैवल किया है, 5 यूनिट्स ट्रैवल किया होगा. So if 2 units is 120 steps, 1 unit is 60 steps. So basically number of steps taken by B will be equal to 5 units, which will be equal to 60 into 5, 300 steps. इस सेकंड सिनेरियो में हुआ क्या कि B ने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए हैं 300, बट एस्केलेटर ने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए हैं 180 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट इज वाई 300 - 180, 120 स्टेप्स चढ़ पाएगा B अल्टीमेटली, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है. क्लियर है. तो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय A इज इक्वल टू 48, टेकन बाय B इज इक्वल टू 300. टोटल स्टेप्स टेकन बाय A एंड B विल बी इक्वल टू 48 + 300. तो टोटल स्टेप्स विल बी 348 स्टेप्स इन टोटल. दैट इज नॉट एनी ऑप्शन गिवन इन द आंसर. तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नन ऑफ दीज इज अंट इट. सो क्लियर है, बढ़िया, ओके. इज दैट पार्ट क्लियर? आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 348 स्टेप्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221 is divisible by which of the following numbers? 221 basically written 1, 2, 3, 4, 7 times. In total 7 times. ठीक है, consecutively. तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होगा? एनी टाइम्स अगर हमें डिविजिबिलिटी बाई 3 से टेस्ट करना है तो क्या करेंगे उसके लिए? डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे. और 2, 2, 1 का सम कितना आ रहा है हमारा 2, 2 + 2 + 1, दिस इज इक्वल टू 5. और टोटल 7 टाइम्स है तो सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा हमारा 5 × 7 विच इज इक्वल टू 35. और सिंस 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 3 तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल तो नहीं होगा, ठीक है. डेफिनेटली नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये तो पक्की बात है. और अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा फॉर श्योर. ओके, ऑप्शन ए तो फिर आंसर नहीं होगा, ये श्योर है हम, क्योंकि बाकी सारे केसेस में बट नॉट 3 लिखा है, यानी कि 3 से डिविजिबिलिटी वाला केस तो नहीं बन रहा. अब चेक करना है हमें 11 और 13 से. बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं. लेट अस से हमें कोई नंबर गिवन है, लेट अस से नंबर इज 134, 134, 134, 134. दिस इज आवर नंबर. सो बेसिकली दिस नंबर इज 134 इंटू 1001. और इन जनरल अगर हमारा नंबर इस फॉर्मेट में है ABC ABC, अब ABC सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर तुम सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट्स को देखो 2 to 1, 2 to 1 को, तो उनमें से A और B सेम है, C डिफरेंट है, ठीक है. तो ABC ABC दिस कैन ऑलवेज बी रिटन एज ABC इंटू 1001. ओके, और 1001 की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि 1001 इज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एज वेल एज 11 एज वेल एज 13.
सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 7, 11 एंड 13, मल्टीपल ऑफ 7, 11 13, एलसीएम है 7, 11 13 का. ओके, सो दिस नंबर इज ऑलवेज यूज्ड बाय 7 एज वेल एज 11 एज वेल एज बाय 13. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, बट ये नंबर हमारा सिर्फ एबीसी एबीसी थोड़ी, कितने बार आ रहा है? 7 टाइम्स एबीसी आ रहा है इसमें. तो ये एक लंबा नंबर है, अच्छा खासा लंबा नंबर है. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1. एक बार समझ जाओगे तो फिर इजी हो जाएगा मामला. ठीक है, अब इसको ब्रेक करो इन पार्ट्स में, बिकॉज इन पार्ट्स के साथ में वी आर फैमिलियर, ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा. लास्ट में बेचारे ये वाला पेयर, ये पेयर नहीं बना पाएगा, अकेला बचेगा, कोई बात नहीं. सो लिख दो इसको. दिस कैन बी रिटन 2 2 1 2 2 1 इनटू, फॉर द फर्स्ट पार्ट कितने जीरो आएंगे इसके बाद में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15, तो इनटू 10 टू द पावर 15 प्लस. अब बात करते हैं इस सेकंड वाले पार्ट की. सो दिस विल बी 2 2 1 2 2 1 इनटू 10 टू द पावर 9. थर्ड पार्ट 2 2 1 2 2 1 इनटू 10 टू द पावर 3, और लास्ट पार्ट प्लस 221 प्लस 221. तो जो पहला वाला पार्ट है हमारा, दिस इज 2 2 1 2 2 1 इनटू 10 टू द पावर 5, और 2 2 1 2 2 1 डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू 221 इनटू 1001. दिस इज 221 इनटू 1001, इजंट इट सो? ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा है, ये तो हम फॉर श्योर जानते हैं कि दिस इज 221 इनटू 1001 विच इज 7 इंटू 11 इंटू 13. तो ये तो 7 का मल्टीपल भी है, 11 का भी और 13 का भी है. सो दिस फर्स्ट पार्ट इज द मल्टीपल ऑफ 7 एज वेल एज 11 एज वेल एज 13. सिमिलरली दिस पार्ट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7 11 13. दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7 11 13. बट लास्ट पार्ट हमारा जो है, ये तो 7 11 13 का मल्टीपल नहीं है, बिकॉज ये तो अकेला 221 में बेचा रहा है. तो क्योंकि ये जो लास्ट पार्ट हमारा बच गया, दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7. 7 का मल्टीपल है नहीं है, तो नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7. 7 से डिविजिबल नहीं है. क्या 11 से डिविजिबल है? 220 होता तो होता, बट 11 से डिविजिबल नहीं है. क्या 13 से डिविजिबल है? 221 इज 13 इंटू 17, तो यस 13 से डिविजिबल दिख रहा है. दिस इज 13 इंटू 17, तो यस दिस इज डिविजिबल बाई 13. अब ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे 13 से डिविजिबल हैं. ऑल दीज पार्ट्स आर डिविजिबल बाई 13. इनफैक्ट बाकी पार्ट्स तो 13 के स्क्वायर से डिविजिबल है, बिकॉज 221 इंटू 1001 है. अब 221 भी 13 से डिविजिबल है, 1001 भी 13 से डिविजिबल है, तो बाकी पार्ट्स हमारे 13 के स्क्वायर से भी डिविजिबल है. बट ये वाला जो पार्ट बचता है, ये 13 से डिविजिबल है फॉर श्योर. यस दिस इज डिविजिबल बाई 13 एज वेल एज डिविजिबल बाई 17. 13 से भी डिविजिबल है, 17 से भी डिविजिबल है, और ये बाकी सारे के सारे पार्ट्स भी हमारे 13 से भी डिविजिबल है एंड एडिशनली 17 से भी डिविजिबल है. Isn't it so? तो बेसिकली आवर होल समेशन इज डिविजिबल बाई 13 एज वेल एज 17, बिकॉज सारे पार्ट्स हमारे 13 और 17 से डिविजिबल है. 11 से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 11 से लास्ट वाला पार्ट डिविजिबल नहीं है. बाकी पार्ट तो डिविजिबल होता, बट लास्ट पार्ट नहीं है. 7 से ही बाकी पार्ट डिविजिबल है, बट लास्ट पार्ट नहीं है. दैट इज वाई 7 से डिविजिबल नहीं होगा. टोटल हमारा समेशन 11 से डिविजिबल नहीं होगा, बट 13 और 17 से होगा. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज 11 से नहीं है बट 13 से तो है. ओनली 13, बिकॉज 17 के बारे में ऑप्शन में गिवन ही नहीं है. ओके, आंसर आ जाएगा 13 बट नॉट 3 और 11. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, next question. A group of 630 children is arranged in rows for a group photograph session. Each row contains 3 fewer children than the row in front of it. What number of rows is not possible? Group है 630 children का. They are arranged in rows for a group photograph session. Each row contains 3 fewer children than the row in front of it. Let us say सबसे जो first row है हमारा, first row में there are x number of children. तो second row में कितने होंगे? 3 fewer होंगे, यानी x minus 3 हो जाएंगे. थर्ड रो में x minus 6 हो जाएंगे. फोर्थ रो में x minus 9 हो जाएंगे, एंड सो ऑन. ऐसे ही गाड़ी बढ़ती रहेगी आगे. अब क्या पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन है 4 5 6 7. स्ट्रेट अवे चेक कर लेते हैं. देखो कभी भी इन जनरल लेट अस से हमने लिखा, नंबर्स लिखते हैं कुछ. फॉर एग्जांपल हमारे नंबर्स हुए 1, फर्स्ट रो में चिल्ड्रन, लास्ट रो में चिल्ड्रन 1 है, लास्ट रो में 1 है, फिर 4 आ गया बिकॉज 3 ज़्यादा होंगे, उससे आगे वाली रो में फिर 7 आ गया, फिर 10 आ गया. अगर हमारे पास लेट अस से इवन नंबर ऑफ रोज हैं, 1 4 7 10, 4 नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, तो एवरेज क्या आएगा हमारा? एवरेज क्या है? क्योंकि एक स्ट्रेट अवे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. एवरेज क्या होगा? एवरेज विल बी मिडिल वैल्यू विच विल बी 5.5 इन दिस केस. ओके, अगर नंबर रोज इवन है हमारी, ठीक है, तो एवरेज एक मिडिल वैल्यू आएगा, 5.5 हो गया, जो कि इस केस में, ठीक है. क्या क्लियर है? तो एवरेज जो हमारा आ रहा है दैट इज नॉट इंटीजर एज सच, क्योंकि वो एक मिडिल वैल्यू हमें दे रहा है. डिफरेंस यहाँ पे आकर आ रहा है 3 का, दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस 3 का है, और एवरेज इन दोनों का एवरेज होगा, यानी कि
अगर हम 4 में ऐड करें 4 प्लस 1.5 या 7 माइनस 1.5, तो एवरेज विल ऑलवेज बी इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ रोज दैट विल नॉट बी इंटीजर। और अगर ऑड नंबर ऑफ रोज हुए लेट अस से 147, तब फिर मिडिल वैल्यू विल बी एवरेज विच विल बी इंटीजर केस। ओके, तो इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ रोज average should be an integer. In case of even number of rows, average will not be an integer but integer plus 1/2. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर रोज हम 4 लेते हैं, एवरेज क्या करोगे? एवरेज के लिए डिवाइड बाई 4 कर दोगे, स्ट्रेट अवे एवरेज आ जाएगा 630/4। इफ रोज आर इक्वल टू 4, तो एवरेज विल बी इक्वल टू 630/4 विच विल बी 157.5। अब क्या ये एवरेज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज 157.5 अगर हमारा एवरेज है तो नंबर्स क्या होंगे? दिस इज एवरेज, तो 1.5 ज्यादा होगा एक नंबर हमारा 159, फिर 162, और एक नंबर होगा 156 एंड देन 153। ठीक है, सम करोगे तो डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू 630। तो यस, दिस इज पॉसिबल स्ट्रेट अवे। क्लियर है? ठीक है, अगर रो नंबर हमारा टोटल 5 है, एवरेज विल बी इक्वल टू 630/5, सो एवरेज विल बी इक्वल टू 120 प्लस 6 126 होगा। और यहां भी बन जाएगा हमारा, क्योंकि इंटीजर आ रहा है, ऑड है और इंटीजर आ रहा है, तो 126 129 132 एंड 123 एंड 120। अगर r इक्वल टू 6 होगा तो वैल्यू आ जाएगा 630/6 विच विल बी 105। बट द प्रॉब्लम इज कि अब नंबर ऑफ रोज इवन है और इवन के केस में एवरेज अगर इंटीजर आ जाएगा तो प्रॉब्लम है, बिकॉज अब तुम 1.5 कम करोगे, 1.5 ज्यादा करोगे, जो कि एक इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, तो इस केस में दीज मच नंबर ऑफ रोज आर नॉट पॉसिबल। क्योंकि एवरेज आया 105, तो नंबर्स हमारे आ जाएंगे 103.5 106.5, जो कि डेफिनेटली नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो उनको आधा आधा काट के नहीं रोज में डिवाइड करोगे, डेफिनेटली वो इंटीजर में ही रहेंगे। तो इंटीजर में यहाँ पे रहना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एवरेज इंटीजर आ गया, सो दैट इज वाई दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 6 इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस दैट मस्ट बी द आंसर। 7 देखते हैं, 7 पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इफ r इज इक्वल टू 7, तो 630/7 दिस विल बी 90, और 90 आ रहा है जो कि इंटीजर है, ऑड है, तो डेफिनेटली ऑड के केस में पॉसिबल होगा। मिडिल वैल्यू आ जाएगी 90, देन 93 96 99, और इससे पहले की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 87 84 81। ओके, सो ओनली रो नंबर 6 इज नॉट पॉसिबल, बाकी सारे गिवन ऑप्शंस पॉसिबल हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 6। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical metal of radius 10 cm is molten and made into 1000 smaller spheres of equal sizes. In this process, the surface area of the metal is increased by what value? So, initial radius कितना है? Radius of the largest sphere is 10 cm and this is molten and made into 1000 smaller spheres. So, volume तो ऐसे किसी भी केस में जब भी हम पिघला के कुछ नया बना रहे हैं, तो हमेशा क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? हमारा एरिया कांस्टेंट कभी नहीं रहेगा, हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एरिया कांस्टेंट हो सकता है किसी स्पेसिफिक केस में, बट इन जनरल वॉल्यूम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने जो क्वांटिटी लिया है वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, पिघला के हम फिर से बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कुछ भी ऐड नहीं किया हमने, क्योंकि तो वॉल्यूम इन इनिशियल केस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन द फाइनल केस। तो इनिशियल केस में वॉल्यूम आ रहा है हमारा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई 10 क्यूब, और फाइनल केस में n हमारे टोटल कितना है? 1000 बन रहा है पीसेस, तो 1000 पीसेस इंटू 4/3 पाई r क्यूब मान लेते हैं, लेट अस से r इज द रेडियस इन द न्यू सिनेरियो, तो 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 10 क्यूब यानी 1000 इक्वल टू 1000 r क्यूब, सो r क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड हेंस रेडियस इन द न्यू सिनेरियो विल बी इक्वल टू 1 ओनली, रेडियस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल सर्फेस एरिया इन द फर्स्ट केस कितना होगा? टोटल सर्फेस एरिया इनिशियली विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर इनिशियली। ठीक है, तो दिस इज 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर विच इज 400 पाई, और टोटल सरफेस एरिया फाइनली 1000 है, एक स्क्वायर का कितना होगा? 1000 इंटू 4 पाई रेडियस स्क्वायर, और रेडियस अब 1 है, तो 1000 इंटू 4 पाई इंटू 1, तो दिस विल बी 4000 पाई विच इज 10 टाइम्स ऑफ 400 पाई। तो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया इज नाउ 10 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 टाइम्स, ऑप्शन सी। ओके, इंक्रीज बाय नहीं, इंक्रीज टू होना चाहिए ऐसे।
इंक्रीज 2, बिकॉज इंक्रीज तो 9 टाइम्स से हुआ है, इंक्रीज 2 10 टाइम्स होगा, ठीक है। पहले अगर 1 यूनिट था तो अब 10 यूनिट्स हो गया है, तो 2 विल बी अप्रोप्रिएट वर्ड, बाई तो गलत हो जाएगा बिकॉज बाई में 9 टाइम्स होना चाहिए आंसर। अगर इनिशियली 1 यूनिट था तो अब 10 यूनिट्स हो गया, 9 यूनिट से इंक्रीज किया है, सो इंक्रीज बाई 9 टाइम्स होगा, बट इंक्रीज 2 10 टाइम्स होगा। ग्रामेटिकली दैट विल बी करेक्ट। क्लियर है? ओके। बिकॉज अगर बाई मेंशन्ड हो और नॉट दिस गिवन होता तो नॉट दिस वुड हैव बीन द आंसर एंड नॉट 10, बिकॉज 9 टाइम्स वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट और ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट। ओके, क्लियर है? क्या ये डिफरेंस समझ में आता है? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाई और 2 वाला भी डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा भी एग्जामिनर करता है, बाई और 2 वाला फर्क जो आता है, ठीक है। सो इन दिस केस आई एम श्योर यू आर क्लियर नाउ दैट द surface area increased by 9 times but increased to 10 times, ठीक है। So 2 should be the correct word. Okay, next question. How many arrangements there can be formed out of the letters of the word examination so that vowels always occupy odd places? Letters of the word examination so that vowels always occupy odd places. Arrangements कितने ऐसे फॉर्म किया जा सकता है? Arrangements यानी कि सेम नंबर ऑफ वर्ड, सारे के सारे लेटर्स हमें वही सेम लेने हैं बट उनको अरेंज करना है। तो पहले तो देखते हैं कितने वॉल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, टोटल लेटर्स 11 है। आउट ऑफ दोज 11 लेटर्स ई ए आई ओ 6 वॉवेल्स हैं, जिनमें से कि देयर इज 1 ई, 2 ए, 2 आई एंड 1 ओ। एडिशनली 5 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे, सो एक्स एम एन टी एन, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं जिसमें कि एन इज 2 टाइम्स, बाकी सब तो एक बार है बट देयर आर 2 एन्स, तो 5 कॉन्सोनेंट्स आर देयर। और अरेंज करना है सो दैट वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ऑड प्लेसेस आर 1 3 5 7 9 11, 6 ऑड प्लेसेस हैं और 6 ही हमारे वॉवल्स हैं, तो ऑल वॉवल्स मस्ट बी प्लेस्ड इन द ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो वॉवल्स हमारे ऑड प्लेसेस पे ही अरेंज होंगे, और ऑड प्लेसेस भी 6 हैं, वॉवल्स भी 6 हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्शन वाला कोई चक्कर नहीं है। स्ट्रेट अवे सारे के सारे वॉवल्स को ऑड प्लेसेस पे रख दोगे, बट कितने हैं 6। अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट विल बी 6 फैक्टोरियल, बट देयर आर 2 एज एंड 2 आईज, तो ये आपस में अरेंज होंगे, तो बात तो सेम ही रहेगी। तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करोगे फॉर वॉवल्स। ओके, अब बचे हुए प्लेसेस जो हैं वहां पे हमारे कॉन्सोनेंट्स अरेंज होंगे, और कॉन्सोनेंट्स हैं 5, तो इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 एंस हैं, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करोगे यहां भी, तो 6 फैक्टोरियल इज 720, 720 by 4 into 120 by 2, which is 180 into 60, 18 6 are 108 followed by 2 zeros, so 10,800 will be total number of ways. Option C will be the answer. 10,800 will be the answer. Is this clear? ठीक है, next question. Ramesh analyzed the monthly salary figures of 5 vice presidents of his company. All the salary figures are integral multiples of 1 lakh rupees. The mean and the median salary figures are rupees 5 lakh and the only mode is rupees 8 lakhs. So which of the options given below is the sum of the highest and the lowest salaries? Mean and median are same, that is equal to rupees 5 lakh. Total कितने हैं vice presidents? 5 vice presidents are there. So 5 है, तो sum क्या आ जाएगा? Sum of salaries क्या आ जाएगा? Sum will be average into total number, यानी 5 into 5 lakh. तो sum will be 25 lakhs. और median is also 5 lakh. तो अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया ऑल 5 सैलरीज को, सो मीडियन विल बी इक्वल टू 5 lakhs. This will be median, middle value. And only mode is rupees 8 lakhs. So mode is the value that is occurring most frequently. और क्योंकि 5 वैल्यूज ही हैं, 5 लाख से बड़ी वैल्यू है 8 लाख, तो 8 लाख एक्जैक्टली 2 टाइम्स ही आया होगा, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज टोटल वैल्यूज भी 5 है हमारी, इजंट इट सो? और सबको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर मैनेज करोगे तभी मीडियन डिफाइन होगा, तो 5 हमारा मिडिल में आ रहा है, तो फॉर श्योर 8 lakhs मस्ट हैव कम ट्वाइस, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और सिंस दिस इज ओनली मोड, देयर इज नो अदर मोड, देयर इज ओनली मोड दैट इज इक्वल टू 8, तो अब इसके अलावा जो भी वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आएंगी, ओनली वंस, नॉट ट्वाइस, फॉर श्योर। तो सम कितना आ गया हमारा? टोटल है 25, आउट ऑफ 25 यहां पे सम आ रहा है हमारा 5 + 8 + 8 यानी 16 + 5 21 lakhs इज दिस सम। तो रिमेनिंग सम फॉर फर्स्ट 2 वैल्यूज और मिनिमम 2 वैल्यूज, लीस्ट 2 वैल्यूज विल बी 4 lakhs, बिकॉज टोटल सम हमारा आ रहा है 25।
तो 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्ट्स में। अगर मोड ओनली नहीं मेंशन होता तो 2 लाख प्लस 2 लाख भी केस होता, बट क्योंकि वो केस पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर इज ओनली वन मोड दैट इज ₹8 लाख, तो फॉर श्योर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 and 3 बिकॉज इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता 1.5 लाख हो और ठीक है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपीज, तो 1 and 3 विल बी द केस। तो मिनिमम वैल्यू विल बी 1 लाख, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 8 लाख। और क्वेश्चन ने पूछा है हाईएस्ट एंड लोएस्ट का सम क्या होगा, तो 1 + 8 विल बी इक्वल टू 9। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, 9 lakhs विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical trains A and B running in opposite directions at the same time, same speed, take 2 minutes to cross each other completely. So they are running in the opposite direction. Identical trains है यानी कि everything is equal, their speeds is equal as well as the length is also equal. Train A and train B. They are running in opposite direction, तो speeds add up हो रहा है और time taken is 2 minutes. In 2 minutes they are able to cross each other. Let us say ओके तो नंबर ऑफ बोगीज ऑफ ए आर इंक्रीज फ्रॉम 12 to 16। तो ए में इनिशियली बोगीज कितनी है 12, बट सेकंड सिनेरियो में इफ नंबर ऑफ बोगीज आर इंक्रीज टू 16, बी में कितनी बोगीज रही होंगी 12 ही रही होंगी बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, और फाइनली भी 12 भी रहेंगे क्योंकि ए में बोगीज चेंज करो बी में तो उतना ही रखो। तो हाउ मच मोर टाइम वुड दे नाउ रिक्वायर टू क्रॉस ईच अदर। इनिशियली नंबर ऑफ बोगीज कितना था 12/12 और लेंथ एक्जैक्टली सेम था, तो इनिशियली 24 यूनिट्स या 24 बोगीज को क्रॉस करना था, जो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करें। टोटल कितना लेंथ क्रॉस करना था 24 यूनिट्स या 24x मान लो, अगर एक बोगी की लेंथ x मीटर्स है। ओके और फाइनली क्रॉस करना है हमें 28x। स्पीड अभी भी सेम है, तो पहले 24x क्रॉस करने में टाइम लग रहा था 2 मिनट्स का, अब क्रॉस करना है 28x विच इज 24x प्लस 4x प्लस 4x 2 मिनट्स इज 120 सेकेंड्स। ओके तो 24x क्रॉस करने में लग रहा था टाइम 120 सेकेंड्स का, और उसका 1/6 है 4x, तो क्रॉस करने में टाइम लगेगा 20 सेकेंड्स का एडिशनल इंटू 1/6 कर दोगे तो 120 + 20 यानी 140 सेकंड्स का टाइम लगेगा। बट क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मच मोर टाइम विल बी नीडेड, तो मोर टाइम विल बी 20 सेकंड्स, दिस विल बी द आंसर। 20 सेकंड्स विल बी एडिशनल टाइम नीडेड, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x इज लेस देन 0.50, 0 इज लेस देन y, y इज लेस देन 1 यानी कि y इज बिटवीन 0 and 1 एंड z इज ग्रेटर देन 1। गिवन अ सेट ऑफ नंबर्स, द मिडिल नंबर व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन वैल्यू। सो द मीडियन ऑफ द नंबर्स x, y एंड z किस रेंज में लाई करेगा, वेदर दिस विल बी लेस देन 1, बिटवीन 0 and 1, ग्रेटर देन 1 और कैन नॉट से। ओके और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऐसे किसी भी केस में चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू कैन से बिटवीन a एंड b, तो ए कह रहा है लेस देन 1 और बी अगर बिटवीन 0 and 1 है तब भी तो लेस देन 1 है, ठीक है तब भी तो लेस देन 1 है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी बिटवीन 0 and 1। ओके एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट देन ऑफ कोर्स ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके सो मीडियन का रेंज क्या होगा, किस रेंज में लाई करना चाहिए, x इज लेस देन 0.50 दैट वी नो फॉर श्योर, y इज बिटवीन 0 and 1 and z is definitely greater than 1, यानी कि बेसिकली देयर आर टू नंबर्स x and y which are less than 1। ठीक है मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू है, मीडियन विल ऑलवेज बी द मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू व्हेन यू आर अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो मीडियन विल ऑलवेज बी मिडिल वैल्यू। अब जब दो नंबर्स हमारे टू नंबर्स आर लेस देन 1 एंड इफ टू नंबर्स आर लेस देन 1 तो मीडियन डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, ये बात तो पक्की है बिकॉज टोटल नंबर्स ही 3 हैं, तो मीडियन विल डेफिनेटली बी लेस देन 1, ये तो श्योर है। एंड इफ दैट इज श्योर तो फिर ऑप्शन सी तो आंसर नहीं है। ठीक है क्या ही क्लियर है? ओके एडिशनली x इज लेस देन 0.50, तो x तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि नंबर सारे पॉजिटिव होना चाहिए, x कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, बट y इज बिटवीन 0 and 1 और z इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो दो नंबर्स हमारे टू नंबर्स बेसिकली आर डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर्स, एटलीस्ट टू, numbers are
ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो, एटलीस्ट टू। भाई एक्स भी पॉजिटिव हो सकता है बट कम से कम दो तो डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो है या पॉजिटिव है। एंड इफ एटलीस्ट टू नंबर्स आर डेफिनेटली पॉजिटिव, तो हमारा जो मीडियन होगा वो फॉर श्योर मिडिल वैल्यू विल ऑल्सो बी फॉर श्योर ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दो नंबर्स तो हमारे पक्का पॉजिटिव है। ठीक है, सो मीडियन विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन जीरो। दो प्रॉपर्टीज मिल गई, मीडियन इज ग्रेटर देन जीरो एंड मीडियन इज लेस देन वन, तो मीडियन मस्ट बी बिटवीन जीरो एंड वन फॉर श्योर, must be between 0 and 1. Option B will be the answer. Okay. Option B will be the answer in this case. And between A and B, B is more appropriate in that terms. So that is why B will be the answer. Okay. क्या clear है? Next question. A, B and C rented a pasture by paying rupees 2160 per month in total. Total amount that they paid per month is rupees 2160. They put 60, 40 and 20 sheep respectively. A sells 1/3 of his sheep to B after 6 months and after 3 more months C sells 2/5 of his sheep to A. Find the rent paid by C at the end of the year. तो rent paid will be in proportional to कितना उनका शीप पे एक्सपेंडिचर रहा, यानी कि कितने इसके हिस्से कितनी शीप्स नहीं, अकॉर्डिंगली इन दैट प्रोपोर्शन दे विल बी पेइंग द रेंट। रेंट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, सो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमेशा ये प्रिज्यूम करना है कि रेंट पेमेंट या फिर एनी पेमेंट व्हाटसोएवर विल ऑलवेज बी इन प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी दैट दे आर कंज्यूमिंग। ठीक है, तो जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं तो जितनी शीप्स उनके पास होंगी उस हिसाब से प्रोपोर्शन में होगा। तो इनिशियली फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ क्या गिवन है हमें, ए बी सी के पास में 60, 40 और 20 शीप्स हैं। 60, 40 and 20 sheep are there in total with A, B and C. Okay. A sells 1/3 of his sheep to B after 6 months. तो first 6 months तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सबके पास में 60, 40 and 20 sheep है for first 6 months. ठीक है, तो number of sheep and time. Okay. After first 3 months, A sells 1/3 of his sheep to B. 1/3 of his sheep यानी कि A के पास नंबर ऑफ शीप कितना बच जाएगा, 60 - 20, 1/3 वो सेल कर देगा, तो रिमेनिंग नंबर विद A विल बी 60 - 20 विच इज इक्वल टू 40। और ये सेल किसको किया है, B को सेल किया है, तो B के पास हो जाएगा 40 + 20 यानी 60 शीप्स, और C के पास उतना ही रहेगा आफ्टर 6 मंथ्स। बट दिस इज फॉर हाउ मच टाइम, उसके बाद में 6 मंथ्स के बाद है, बट ऑल्सो सेइंग दैट आफ्टर 3 more months यानी कि 3 महीने तक यही सेम चीज सिनेरियो चलेगा, तो फॉर नेक्स्ट 3 months दिस विल बी द रेशियो। After those 3 months, C sells 2/5 of his sheep to A. 2/5 of his sheep to A. तो C के पास 20 है, 20 का 2/5 will be 8. तो 8 sheep से C सेल कर देगा A को, C के पास बचेंगे 12 और A के पास हो जाएंगी 48, B के पास रहेंगी 60 और दिस सिनेरियो इज फॉर लास्ट 3 months. सो टोटल वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, टोटल कितना कंजम्पशन किसने किया, सो फॉर A टोटल कंजम्पशन आएगा 60 × 6 that is 360 plus 120 which will be 480 plus 144. ठीक है, 480 plus 144, या फिर टाइम को हम रेशियो में भी ले सकते थे कि 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 1 यूनिट मान लेते, 2 1 थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता, बट अदरवाइज 16 × 6 360 plus 120 480 plus 144, तो 580 plus 24 यानी 604 आ जाएगा। एक सेकंड 480 plus 144 624 आएगा। This is 14 × 6 240 plus 180 420 plus 180 600 and this is 120 plus 60 180 plus 36 260। ठीक है, 6 से तो डिवाइड हो रहा है क्या, 12 से भी, हाँ 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, इनफैक्ट 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड कर लो इसको तो सिंप्लीफाई होकर रेशियो आ जाएगा हमारा 26 = 25 = 9, 26 × 25 = 25 = 9। ओके, टोटल वैल्यू आएगा 26 + 25 विच इज 51 + 9 60। 60 यूनिट्स इज टोटल अमाउंट दैट दे हैव टू पे, 60 यूनिट्स, और उसकी वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये ईयर की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना, रुपीज 2160 पर मंथ है, तो 2160 × 12 करोगे, फाइव यूनिट्स इज इक्वल टू 2160, तो 1 यूनिट आ जाएगा 432।
और सी का पेमेंट है 9 यूनिट्स का, तो पेमेंट मेड बाय सी विल बी 9 into 432, तो 4320 minus 432, so that will be 3920 minus 32, which will be 3888 rupees. Rupees 3888, option B will be the answer. Okay, clear? Next question. Next is if 1 root of x square minus px plus 12 is equal to 0 is 4, while the equation x square minus px plus q is equal to 0 has equal roots, then value of q क्या होगा? One root of the first equation is given, that is equal to 4. So that root must satisfy the given equation. Put x equal to 4 in the given equation. So 4 square minus 4p plus 12, this should be equal to 0. So 16 plus 12, 28 minus 4p is equal to 0. 4p is equal to 28, so p will be equal to 7. Now put p is equal to 7 in the second equation. So second equation becomes x square minus 7x plus q, this is equal to 0. And second equation has equal roots. और equal roots कब होंगे? When the discriminant is equal to 0. तो बस discriminant को equal to 0 कर दो. Discriminant will be b square यानी 7 square minus 7 का square, which is 49 minus 4 ac यानी 4 into q into 1. तो 49 minus 4q, this is equal to 0. ठीक है, this is first value is 49, second is 4q. तो 4q is equal to 49 and hence q will be equal to 49 divided by 4. q का वैल्यू आ जाएगा 49 divided by 4, option A will be the answer. The value of q will be 49 by 4. Okay. Next question. There are 4 machines in a factory at exactly 8 p.m. When the mechanic is about to leave the factory, he is informed that 2 of the 4 machines are not working properly. 2 of the 4 machines are not working properly. The mechanic is in a hurry and decides that he will identify the 2 faulty machines before going home and repair them next morning. तो उसको क्या करना है? अभी वो आइडेंटिफाई करेगा, रिपेयर करेगा नेक्स्ट मॉर्निंग पर, बट आइडेंटिफाई करेगा अभी. इट टेक्स इन 20 minutes टू वॉक टू द बस स्टॉप. 20 minutes का टाइम उसको लगेगा टू वॉक टू द बस स्टॉप. लास्ट बस लीव्स एट 8:32 p.m. सो इट इज ऑलरेडी 8. फ्रॉम 8 to 8:32 p.m. कितना टाइम है उसके पास? 32 minutes का है. बट ही टेक्स 20 minutes टू वॉक टू द बस स्टॉप, यानी 20 minutes का टाइम तो उसको पैदल जाने में ही लग जाएगा. तो 12 minutes का टाइम है बेसिकली उसके पास टू चेक द मशीन्स, to find out, to identify those 2 faulty machines. Isn't it so? 12 minutes का टाइम इस पर बचता है उसके पास में, because from 8 p.m. this is already 8 p.m. and at 8:32 he has to reach for sure bus stop because last bus leave करती है 8:32 पे. तो अगर वो 8:12 पे चलता है, निकलता है यहाँ से, तभी पहुंच पाएगा because 20 minutes उसको लगना ही वाला है. तो at the max to max maximum वो रुक सकता है 8:12 तक. Okay. If it takes 6 minutes to identify whether a machine is defective or not, and if it decides to check the machines at random, what is the probability that mechanic will be able to catch the last bus? तो last bus वो कब कैच कर पाएगा? जबकि for sure 12 minutes उसका काम कंप्लीट हो जाए. He only has 12 minutes to spare. And to check one machine, he needs to take 6 minutes का टाइम. Total machines है 4. 4 machines are there. Out of these 4 machines, let us say machines है हमारी A, B, C, D. और एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि लेट अस से सी एंड डी आर फॉल्टी. ठीक है, सी इज फॉल्टी एंड डी इज फॉल्टी. तो 2 मशीन्स आर फॉल्टी एंड 2 आर करेक्ट. ठीक है, 2 आर करेक्ट. ही विल बी चेकिंग रैंडमली. वो तो रैंडमली चेक करेगा. तो अगर रैंडमली चेक करेगा कितने केसेस बनने वाले हैं, टोटल केसेस कितने बनेंगे? 4 में से 2 को रैंडमली सेलेक्ट करेगा. ठीक है, तो 4C2 विल बी टोटल वेज जिनसे कि कैन सेलेक्ट 2 मशीन्स. टोटल वेज टू सेलेक्ट 2 मशीन्स, बिकॉज एट द मैक्स वो 2 ही मशीन सेलेक्ट कर सकता है 12 मिनट्स में. 2 ही मशीन चेक कर सकता है 12 मिनट्स में, अगर उसको इंश्योर करना है कि वो पहुंच पाए. Isn't it so? ओके, क्या है? क्लियर है? अगर पहली 2 मशीन से उसको, बेसिकली इस बात का मतलब ये हुआ, अगर पहली 2 मशीन जो उसने सेलेक्ट की हैं, अगर उनसे उसको आइडेंटिफाई हो गया कि विच मशीन्स आर फॉल्टी, तब तो वो लास्ट बस पिकअप कर लेगा. अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो उसको थर्ड मशीन चेक करना पड़ेगा. बट जैसे वो थर्ड मशीन चेक करना स्टार्ट करेगा, उसके लिए फॉर श्योर हो जाएगा कि नाउ ही विल नॉट बी एबल टू पिकअप द लास्ट बस. दैट इज व्हाट आई मीन बाई सेलेक्टिंग द फर्स्ट 2, बिकॉज फर्स्ट 2 जो सेलेक्ट कर रहा है वो क्रूशल है. वो डिटरमाइन करेगा कि वेदर ही विल बी एबल टू पिक द लास्ट बस और नॉट. ठीक है, तो फर्स्ट 2 वो कौन कौन सी पिकअप कर सकता है? 6 केसेस बना लेते हैं अपने. या तो पिक करेगा ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, या फिर सी डी.
एक सेकंड, सी डी को फिर सेपरेटली लिख लेते हैं। अब इनमें से कितने केस होंगे जबकि वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सी मशीन फॉल्टी है? हाँ, सी और डी को पिक कर लिया तो पक्की बात है आइडेंटिफाई कर लेगा दैट दीज आर फॉल्टी, इजंट इट सो? बट इस क्वेश्चन में अगर इतना आसान होता तो ये क्वेश्चन नहीं होता। द पॉइंट इज सी और डी को पता लगा लेगा तब तो आइडेंटिफाई कर ही लेगा कि कौन सी मशीन फॉल्टी हैं। बट अगर उसने ए और बी को पिक किया तब क्या पता नहीं चलेगा उसको? ना ए फॉल्टी है ना बी फॉल्टी है, दोनों ही मशीन हमारी फॉल्टी नहीं है। तो अगर ये दोनों फॉल्टी नहीं है, टोटल मशीन 4 हैं, यानी कि बची दोनों फॉल्टी होंगी। तो ए बी के केस में भी व्हेन बोथ मशीन्स आर फाइन तब भी उसको पता चल जाएगा विच मशीन्स आर फॉल्टी, इजंट इट सो? इफ ही पिक्स अप बोथ फॉल्टी मशीन्स तब तो उसको पता है ये कौन सी मशीन फॉल्टी है। बट इफ ही पिक्स अप बोथ द करेक्ट मशीन्स, बोथ द राइट मशीन्स, बोथ द मशीन्स दैट आर वर्किंग प्रॉपर्ली, देन आल्सो ही इज एबल टू फाइंड आउट दैट विच मशीन्स आर फॉल्टी, बिकॉज बची हुई तो फॉल्टी होंगी। तो ये दो केसेस हमारे जो हैं ये काम के हैं जिनमें कि वो अपनी लास्ट बस पिकअप कर पाएगा, और किसी भी केस में पड़ गया चक्कर में तो फंस जाएगा बेचारा। क्योंकि अगर ए और सी को पिक किया, एक फॉल्टी है एक नहीं फॉल्टी है, बी और डी बची हैं जिनमें से कि एक फॉल्टी होगी एक नहीं होगी, वो कौन सी फॉल्टी होगी दैट ही कैन नॉट नो विदाउट चेकिंग वन मोर मशीन। हाँ, एक और मशीन चेक करेगा तब तो पता चल जाएगा, ठीक है, बट उतना टाइम उसके पास है नहीं और वो चेक करेगा और बस छूट जाएगी उसकी। तो डेफिनेटली 2 केसेस आउट ऑफ टोटल 6 केसेस आर फेवरेबल केसेस, जिन केसेस में ही विल बी एबल टू पिक द बस, ही विल बी एबल टू कैच द लास्ट बस। तो 2/6 विल बी द आंसर। The probability of catching the bus will be 2/6, which is equal to 1/3. Option A will be the answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? Okay. Option A will be the answer in this case. ठीक है. Next question. A person drew white triangles on a board such that no two of them touched or intersected each other. His friend counted the various types of triangles on the board and came up with the following data. Exactly 20 triangles were there in which all sides were equal. If all sides are equal, तो triangle कौन सा होगा? Equilateral triangle होगा. Equilateral triangle होगा. And total equilateral triangles हैं हमारे exactly 20. तो equilateral triangles are 20. That is the information. Second information, at least 32 triangles were there in which at least 2 sides were equal. Important is at least 2 sides, यानी कि 3 sides equal वाले केस भी इसमें एडेड होंगे, यानी कि these will be including isosceles and equilateral triangles, और at least 32 हैं यानी कि यहां भी inequality है कम से कम, तो greater than equal to 32 triangles are there which include isosceles plus equilateral. So basically this second information also contains the first information, यानी कि equilateral 20 होंगे, ठीक है, क्योंकि equilateral में तो exact value है, तो 20 are equilateral और isosceles will be greater than equal to 12. क्या ये क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। 20 are equilateral और greater than equal to 12 होंगे हमारे isosceles. Third, exactly 12 triangles were there in which all sides are of different lengths. All sides different यानी scalene triangles होंगे, scalene triangles, ठीक है। तो ये तो थर्ड केस बन गया हमारा। scalene triangles are total exactly 12, exactly 12, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर हम सिर्फ इतना पार्ट देखें तो वी कैन से फॉर श्योर, बिकॉज ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है सारे के सारे इंक्लूडेड हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट में, तो डेफिनेट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे 32 + 12 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 44 होंगे। Isn't it so? क्वेश्चन यही पूछा ना, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5, लेकिन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, ये टोटल वाइट ट्रायंगल्स उसने ड्रॉ किए हैं, तो डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 44, ये तो बात पक्की है। बट अभी बाकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना जरूरी है, उसको पढ़े बिना 44 मार्क नहीं कर देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो बची इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्जैक्टली 24 ट्रायंगल्स वर देयर इन विच वन इंटीरियर एंगल वाज ऑब्ट्यूज, यानी दीज आर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कितने हैं, 24 है। देन एक्जैक्टली 28 ट्रायंगल्स, यहाँ पे बात है एग्जैक्ट, वर देयर इन विच इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट, यानी कि क्यूट वाले ट्रायंगल्स कितने हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स हमारे क्यूट वाले 28। और एक्यूट और ऑब्ट्यूज डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ही ऑब्ट्यूज घुसेड़ दोगे, ठीक है। इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूज तो डेफिनेटली फिर वो एक्यूट ट्रायंगल हमारा नहीं रह गया, ठीक है, बिकॉज ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट। ओके, सो ऑब्ट्यूज आर 24, एक्यूट आर 28, सो दीज मस्ट बी डिफरेंट ट्रायंगल्स। सो इन दोनों को मिला लो, बिकॉज ये प्रॉपर्टी ऊपर से डिफरेंट आ गया, तो इनको मिला के वी कैन से दैट डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 52 ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 52 होगा। हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हमारी डेफिनेटली, जब तुम यहां से इंफॉर्मेशन देखो और यहां से भी देखोगे तो मिनिमम वैल्यू विल बी डेफिनेटली 52, मिनिमम वैल्यू विल डेफिनेटली बी 52, ठीक है, 52 या उससे बड़ा अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स भी हुए तो, बट मिनिमम वैल्यू विल बी 52 एंड नॉट 44। क्या क्लियर है? तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए 52, बिकॉज ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं ये सारे के सारे तो एक्यूट वाले ट्रायंगल्स हैं, क्यूट वाले ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। जो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं दोस कैन बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ये दोनों होना पॉसिबल है। स्केलिन ट्रायंगल्स भी कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन चाहो तो वैसे भी देख सकते हो कि
भाई केस अगर हमें लेना हो तो एक्यूट वाले में जितने भी तुम्हारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है सारे के सारे एक्यूट में आ जाएंगे. इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विल ऑल बी एक्यूट फॉर श्योर, क्योंकि सब में एंगल्स क्या होंगे 60 60. इक्विलैटरल ट्रायंगल्स 20 हैं, ऑल दीज आर एक्यूट. रिमेनिंग जो बचे हमारे 8 दीज मस्ट बी इधर आइसोसेलेस और इक्विलैटरल. ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, इक्विलैटरल भी हो सकते हैं. और सिमिलरली ये जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स हैं ये भी आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, इक्विलैटरल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे तो कुछ भी केस पॉसिबल है. ओके ठीक है. और ये जो नंबर है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का, देयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इनका नंबर कुछ भी ले सकते हो. इसके लिए जरूर एग्जैक्टली 12 होंगे. तो इसके लिए 12 किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, तो उसके लिए फिगर करने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा लीस्ट वैल्यू हमें मिल गया है. ओके क्लियर है. बिकॉज जो भी एडजस्टमेंट होगा वो यहाँ पे होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 वाले केस में. भाई 44 से बड़ा वैल्यू हमने निकाला था, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 44 होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 और एटलीस्ट 8 और हमारे ट्रायंगल्स होंगे. एटलीस्ट क्या, एक्जैक्टली 8 और ट्रायंगल्स होंगे, यानी कि टोटल ट्रायंगल्स हमारे विद एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल विल बी 40, एग्जैक्टली 40. अगर हमें इस प्रेजेंट कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो दोज मस्ट बी एग्जैक्टली 40. मिनिमम केस अगर हमें वाई का लेना है तो वो तभी होगा जबकि दीज ट्रायंगल्स आर एग्जैक्टली 40. ओके ओके, नन ऑफ दीज आर राइट एंगल्स ऑब्वियसली, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे तो फिर नंबर वाई का हमारा इंक्रीज कर जाएगा, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 52. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट वन. 3 truck drivers Amar, Akbar and Anthony stop at a roadside eating joint. Amar orders 10 rotis, 4 plates of tadka and a cup of tea. Akbar orders 7 rotis, 3 plates of tadka and a cup of tea. Amar pays rupees 80 for the meal and Akbar pays rupees 60. Meanwhile, Anthony orders 5 rotis, 5 plates of tadka and 5 cups of tea. How much in rupees will Anthony pay? तो अमर कितना पेमेंट कर रहा है, कितना ऑर्डर कर रहा है? 10 रोटीज, लेट अस से रोटी का प्राइस है आर, तो 10 आर प्लस 4 प्लेट्स ऑफ तड़का, लेट अस से प्लेट ऑफ तड़का का प्राइस है पी, 4 प्लेट्स 4 पी प्लस अ कप ऑफ टी यानी 1 टी. दिस टोटल इज रुपीज 80 रुपीज. फॉर अकबर 7 आर प्लस 3 पी प्लस टी एंड दिस इज इक्वल टू 60. टी तो कैंसिल आउट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे से. सब्ट्रैक्ट करते ही टी विल गेट कैंसिल आउट, तो 10 आर माइनस 7 आर यानी 3 आर प्लस पी, दिस इज इक्वल टू 20. ओके और हमें वैल्यू क्या चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू एंथनी ऑर्डर्स 5 रोटीज, 5 प्लेट्स ऑफ तड़का एंड 5 कप्स, यानी कि 5 कप्स ऑफ टी, यानी कि 5 आर प्लस 5 पी प्लस 5 टी. ये वैल्यू चाहिए हमें. कितना कॉस्ट आएगा? ओके कितना कॉस्ट आएगा? अच्छा, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्ट करने के हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, इक्वेशन बना के, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके भी बाद में कहानी बढ़ ही रही है, तो डायरेक्टली लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से और सेकंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से, और रिजल्ट हमें मिल जा रहा है इक्वल टू 5r प्लस 5p प्लस 5t. ओके ठीक है, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 80x प्लस 60y. ओके और इक्वेशन बन जाएगा हमारा क्या, r का कोफिशिएंट क्या है 5r है, तो 10 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इज 5, तो 10x प्लस 7y दिस इज इक्वल टू 5. और सेकंड कोफिशिएंट ऑफ p विल बी 5, तो 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5. ओके क्लियर है? तो 10x प्लस 7y इज इक्वल टू 4x प्लस 3y. and hence 6x is equal to minus 4y. 3x is equal to minus 2y. ठीक है, 3x is equal to minus 2y. ओके तो x अपॉन y आ गया माइनस 2/3. और अगर x की वैल्यू माइनस 2 रखना है, y की वैल्यू 3 रखना है, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? x इज इक्वल माइनस 2 पे माइनस 20 आ जाएगा, y इज इक्वल 3 पे 21, ना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो x इज इक्वल टू माइनस 2, तो रिप्लेस कर दो वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो x इक्वल माइनस 2, कितना वैल्यू आ रहा है माइनस 20 प्लस 21 यानी 1 वैल्यू आ रहा है. तो बेसिकली माइनस 10 और 15 आ गया वैल्यू, x इज इक्वल माइनस 10 एंड y इज इक्वल 15. ठीक है, तो इन केस ऑफ माइनस 10 इंटू माइनस 10 प्लस 7 इंटू 15 दिस इज इक्वल टू 105 माइनस 100, यानी कि यस दिस इज इक्वल टू 5. तो x इक्वल टू माइनस 10 और y इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो टोटल हमारा सम आ जाएगा 80x प्लस 65, यानी कि टोटल सम दिस विल बी इक्वल टू 80 इंटू माइनस 10 प्लस 60 into 15, so minus 800 plus 900.
दिस विल इक्वल टू 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज आ जाएगा अमाउंट टोटल जो कि पे करना है। बट कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन करो, देखो यहाँ पे तो ऑप्शंस में गिवन नहीं था कैन नॉट डिटरमाइंड, बट कभी भी जब 3 अननोन्स हमारे पास हैं और इक्वेशन सिर्फ 2 हैं तो देयर इज अ चांस कि हमारा जो आंसर है कैन नॉट डिटरमाइंड हो। यहाँ पे तो नहीं था तो फॉर श्योर मैंने ऐसे ही कर लिया। अदरवाइज जब हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा -10 जैसे सॉल्यूशन आया तो लास्ट वैल्यू पे जरूर चेक कर लो कि लास्ट वैल्यू पे हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है x इंटू 1 और प्लस y इंटू 1 यानी -10 + 15, तो दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि थर्ड केस में सेटिस्फाई ना करे और आंसर हमारा हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट कभी भी ऐसा होगा तो ऑप्शन में गिवन जरूर होगा, और ऑप्शन नहीं गिवन है डेफिनेटली डिटरमाइन हो सकता होगा, और फिर 2 के केस से तुम्हारा सफाइस हो जाएगा, डेटा सफिशिएंट होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे 3 अननोन है हमारे पास और 2 इक्वेशन है, दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि किसी पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक देखो हम आर पी और टी की वैल्यूज नहीं निकाल पा रहे हैं, बट हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया कितना होगा। ओके, क्लियर है, क्योंकि वैल्यूज निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए था मिनिमम, 2 से काम चलेगा नहीं। ओके, और अभी जो हमें थर्ड इक्वेशन मिल रहा है वो पहले दूसरे का जुगाड़ से ही मिल रहा है, तो ये जो तीसरा वाला है पहले दूसरे का ही जुगाड़ है, तो यहां से मैं आरपीटी की वैल्यू अभी भी नहीं मिल पाएगी अगर ये सोचो कि अब थर्ड इक्वेशन मिल गया। ना ना ना, ये जो थर्ड इक्वेशन है पहले दूसरे का ही मिला जुला रूप है। ठीक है, सो इसकी वजह से काम हमारा बनेगा नहीं। ओके, क्लियर है। सो स्टिल वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर पी एन टी, यानी कि वैल्यू ऑफ 1 रोटी का कितना कॉस्ट आएगा, 1 प्लेट ऑफ तड़का का कॉस्ट क्या होगा, 1 कप रोटी का कॉस्ट क्या होगा, ये इंडिविजुअली हम तीनों वैल्यूज निकाल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose n is an integer such that sum of the digits of n is equal to 2 and 10 to the power 10 is less than n is less than 10 to the power 11, तो number of different values of n क्या होगा, क्योंकि n एक इंटीजर है हमारा और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n क्या है, 2 है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज सम ऑफ डिजिट्स 2 है। सम ऑफ डिजिट्स 2 कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि 2 बहुत छोटा सा नंबर है, तो या तो एक डिजिट 2 होगा बाकी सब 0 होंगे, ऐसा केस होगा। और क्योंकि जो डिजिट 2 होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ही होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, बिकॉज बाद के डिजिट्स में आया तो मतलब नहीं है फिर वो पहले 0 आने का, इजंट इट सो। या तो ये वाला केस होगा या फिर ये होगा कि दिस विल बी 1 + 1 2, यानी कि एक डिजिट 1 होगा फिर एक और 1 होगा, और वो एक और 1 कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला केस होगा। दीज 2 केसेस आर पॉसिबल, और गिवन है n इज बिटवीन 10 to the power 10 एंड 10 to the power 11। 10 to the power 10 से बड़ा है और 10 to the power 11 से छोटा है। 10 to the power 10 में नंबर डिजिट्स कितना होगा, 11 डिजिट्स होगा, बिकॉज 1 के बाद में 10 जीरोज है, और 10 to the power 11 में 12 डिजिट्स होगा। बट हमारा नंबर जो n है वो 12 डिजिट से छोटा है, वो 10 to the power 11 से छोटा है, यानी कि उसमें नंबर डिजिट्स कितना होगा, 11 होगा फॉर श्योर, 11 डिजिट नंबर होगा हमारा। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें इसलिए क्योंकि यहां से हमें पता चलता है कि n इज अ 11 डिजिट नंबर। इलेवन डिजिट नंबर है, तो पहला केस हमारा जो है, फर्स्ट केस में कितने नंबर्स होंगे, सिर्फ एक नंबर होगा, स्टार्टिंग विद 2 फॉलोड बाई 10 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फॉलोड बाई 10 जीरोज, यानी कि 2 इंटू 10 to the power 10, सिर्फ एक ही नंबर होगा। ठीक है, ओनली 1 सच नंबर विल बी देयर। सेकंड केस में क्या होगा, देयर विल बी 2 1s, तो एक 1 तो स्टार्ट में ही होगा फॉर श्योर, और इसके बाद में हमारे पास 10 प्लेसेस और अवेलेबल हैं। अब इन 10 में से कोई भी एक 1 होगा, एग्जैक्टली 1 होगा और बाकी सारे 0 होंगे, तो 10 में से 1 हमें सेलेक्ट करना होगा, जहां पे कि हम 1 फिट करेंगे, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा, तो 10C1, बिकॉज बाकी सब जगह तो 0 ही आना है। तो ऐसे 10 नंबर्स होंगे, तो एक नंबर यहां से मिलेगा, 10 यहां से, टोटल हमारे नंबर्स हो जाएंगे 1 + 10 विच इज इक्वल टू 11 नंबर्स। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, 11 नंबर्स विल बी देयर। ओके, क्लियर है, 11 numbers will be there in this case. Okay, next question, 4 friends start from 4 towns which are at the 4 corners of an imaginary rectangle. So there is a rectangle, and 4 friends are starting from 4 towns which are at the 4 corners of an imaginary rectangle. ठीक है, they meet at a point which falls inside the rectangle after traveling distances of 40, 50 and 60 meters. The maximum distance that the fourth could have traveled क्या होगा approximately, हमें क्या चाहिए, maximum distance that the fourth could have traveled। 3 की डिस्टेंस पता है, लेट अस से दिस इज द पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग, तो डिस्टेंस क्या है, 40, 50 एंड 60, लेट अस से दिस इज 40, दिस इज 50 एंड दिस इज 60, सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, पता होना चाहिए ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। So as per British flag theorem,
if you have a point inside that rectangle, let us say this is the point, और हमें डिस्टेंसेस भी पता है, ठीक है, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है इनसाइड द ट्रायंगल, ये कहीं पे भी हो सकता है. लेट अस से दिस डिस्टेंस इज a, this is b, this is c and this is d. Then the property says that a square plus c square, this is equal to b square plus d square. और प्रूव करना बहुत सिंपल है इसको, बस परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पॉइंट से, ठीक है. तो फिर पाइथागोरस लगा दोगे सारे के सारे ट्रायंगल्स में, तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम. क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश फ्लैग जैसा लग रहा है ना, इसलिए कहते हैं इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम. ओके, तो यही सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए हमको. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट होगा, इफ दिस इज बेसिकली ऑपोजिट वर्टिसेस, जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम कांस्टेंट है, उनके स्क्वायर्स, उनके डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम कांस्टेंट है, ठीक है. तो बेसिकली इफ दिस इज इक्वल टू x, तो 40 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. बट यहाँ पे एक और केस बन सकता है, वो केस क्या बन सकता है, वो केस ये बन सकता है, लेट्स से दिस इज 40, ठीक है, बट ये 50 हो जाए और ये 60 हो और ये x हो जाए, ये भी तो केस बन सकता है. और इस केस में प्रॉपर्टी क्या होगा, 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है कि नहीं, क्या है, क्लियर है, ठीक है. या फिर थर्ड केस बन सकता था 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ऐसे ही बना लेते, 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 50 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो कौन सा ऐसा केस होगा जहां पे कि हमारा x की वैल्यू मैक्सिमम है, ये सारे केसेस पॉसिबल है. कौन से केस में वैल्यू x का मैक्सिमम आने वाला है, जहां पे जो इसके साथ वाला साइड है वो मिनिमम हो. इजंट इट सो, बिटवीन 40, 50 एंड 60, 40 स्क्वायर इज मिनिमम, और उस केस में जो सम हमारा आ रहा है ये मैक्सिमम आएगा 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. तो डेफिनेटली यहां पे x की वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाली है, इन बाकी केसेस में नहीं मिलेगी मैक्सिमम. सो फॉर श्योर मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा x का, इन दिस सिनेरियो. तो यही सिनेरियो हम कंसीडर करेंगे, 40 स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. तो इस केस में x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50 स्क्वायर जो 2500 प्लस 3600 माइनस 1600, तो 4500, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4500 और 60 स्क्वायर इज 3600, 70 स्क्वायर इज 4900. तो बिटवीन 60 एंड 70, x विल बी बिटवीन 60 एंड 70. एक ही ऑप्शन हमारा आ रहा है बिटवीन 60 एंड 70, दैट इज इक्वल टू 67. दैट मस्ट बी द आंसर. अप्रॉक्सिमेटली 67 मीटर्स हमारा विल बी द आंसर. ओके, एक्स स्क्वायर 4500 आ रहा है, x विल बी अप्रॉक्सिमेटली 67. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्या ये क्लियर है, ओके, ठीक है. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन. आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा और मजा आएगा. इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. कहीं भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. और अगर सेशन पसंद आया तो फीडबैक अपना कमेंट्स में जरूर दो. अच्छा लगता है जब तुम्हें चीज़ें समझ में आती हैं और फीडबैक अपना शेयर करते हो, ठीक है. और अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, then subscribe to the channel as well. You can also join the Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries of yours. You can also join the WhatsApp channel Mathological, and that's all for this session. Bye, take care and keep learning.